A group of students investigated the chemical composition of soil from different cities of Pakistan. The students gathered data about the presence of relative percentage of nutrients in the soil and presented the data in the form of tables and graphs. The branch of biology involved in the presentation of data in the given scenario is D. Biomathematics is the correct answer. कैसे पहचाना, किन कीवर्ड्स से हमने पहचाना? Presented the data in the form of tables and graphs. Presence of relative percentages. As you know, biomathematics or biometry deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. That's why correct answer is D, that is biomathematics. Next question. The given pie chart shows the distribution of bioelements in the human body. Pie chart given है. The element represented by 1, 2 and 3 are 1 65% रिप्रेजेंट करा ऑक्सीजन को, 2 18% रिप्रेजेंट करा कार्बन को, 3 10% रिप्रेजेंट करा हाइड्रोजन को. हमारे तीनों करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 is ऑक्सीजन, 2 is कार्बन, 3 is हाइड्रोजन. मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 different levels of biological organization are represented in the given diagrams. The correct sequence in the descending order of biological organization is, मीन्स हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा. 1 में हमें सेल्स नजर आ रहे हैं, सिमिलर सेल्स. 2 is माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनली. 3 is DNA, that is a biomolecule. 4 is आर्टरी. मैंने कैसे पहचाना आर्टरी है? मुझे रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं इसमें, और इसका ल्यूमेन भी बहुत छोटा सा स्मॉल है. तो सबसे बड़ा कौन सा है? 4, दैट इज 1 शुड बी स्टार्ट विथ 4. देन दिस वन जो उससे छोटा है, देन ऑर्गेनली, देन बायोमोलिक्यूल. तो ऑर्डर क्या है? 1 2 3 4, दैट इज 4 1 2 3. 4 1 2 3 हमें किस में गिवन है? ऑप्शन में बी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the scientific method of solving a biological problem, which of the following cannot be opposed or rejected? Hypothesis, laws, theory, observations. क्या कीवर्ड है? Laws cannot be rejected or opposed because it is universally accepted by the scientists. So the correct answer is B, that is Mendel's laws of inheritance cannot be opposed or rejected. हमने लॉस कीवर्ड से पहचाना करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A scientist is conducting an experiment to test the hypothesis that a species of a plant will produce more fruits when exposed to blue wavelength of light at night. The scientist takes 20 experimental plants that are exposed to blue light at night. The control group should, हमारा वेरिएबल क्या है? ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो कंट्रोल ग्रुप में सब कुछ सेम होता है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होता है, एक्सेप्ट दैट वेरिएबल विच इज बीइंग टेस्टेड. तो हमारा वेरिएबल है ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज नॉट टू बी एक्सपोज टू ब्लू लाइट एट नाइट. तो मीन्स वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए. ब्लू लाइट क्या है? वेरिएबल है, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए कंट्रोल ग्रुप में. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी. और नाइट में ही हम चेक करें तो इसलिए नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम इज एडवांटेजियस बिकॉज इट increases the productivity of food. मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. बाकी सारे जो ऑप्शन है वो रेलेवेंट नहीं है, एडवांटेज नहीं है. दैट इज डिक्रीजेस रेनफॉल इन प्लेन्स, इंक्रीजेस कंपटीशन फॉर फूड, decreases decomposition of organic matter. Correct answer is B, that is increases productivity of food. Next question.
Biological classification of P is given in sequence. Classification given है. The order to which P belongs is, जो ट्रिक मैं अपने स्टूडेंट्स को याद करने के लिए बोलती हूँ वो है किंग, प्ले, चेस, ऑन, फाइन, ग्रेन्ड, सेंट. K से किंग, K से किंगडम, P से प्ले, P से फाइलम, C से चेस, C से क्लास, O से ऑन, O से ऑर्डर, F से फाइन, F से फैमिली, ग्रेन्ड, G से ग्रेन्ड, G से जीनस. हमसे क्या पूछा? ऑर्डर. किंग, प्ले, चेस, ऑन मीन्स फेबल्स. करेक्ट आंसर इज A. O से ऑन, O से ऑर्डर मीन्स A is the correct answer. Next question. A biology student observes a plant with the following features. It contains rhizoids. It reproduces by spores. It contains vascular tissues. The plant is identified as a. इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के पहचानना था तो करेक्ट आंसर इज A, that is fern. Which organelle is shown in the given diagram? आपने पहचान लिया होगा ये गोल्जी बॉडी से. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नहीं है ये. क्यों? क्योंकि इनकी जो सिस्टनीज है वो आपस में जॉइंट नहीं है, वो सब एक दूसरे से अलग है. इसलिए जो है ये गोल्जी बॉडीज की डायग्राम है. इसका करेक्ट आंसर बी, गोल्जी बॉडी से. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? सिस्टनी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इसलिए. The given apparatus shows a setup to study the movement of material across semi-permeable membrane. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करती है मूव करने के लिए. यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा. ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर हम इसको दूसरे अल्फाज में ऐसा कह सकते हैं लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते. तो वाटर का लेवल यहाँ पे क्या होगा? राइज होगा. इसलिए जिसका करेक्ट आंसर है वो है लेवल ऑफ वाटर इन ट्यूब 2 विल राइज, क्योंकि यहाँ पे राइज हो जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव करेंगे. इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है. द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू इन प्लांट्स आर. कंपाउंड टिश्यूज की जो करेक्ट एग्जाम्पल थी वो जाइलम और फ्लोएम थे, और सिंपल टिश्यूज की कोलेनकाइमा और एपिडर्मिस, जो कि ऑप्शन ए में दोनों करेक्ट है. इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल का वो ए है. मीन्स कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू की सही एग्जाम्पल है और कंपाउंड टिश्यूज की सही एग्जाम्पल हमारे पास जाइलम है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए है. The given diagram shows the cell cycle in an animal. मीन्स ये एक सेल साइकिल की डायग्राम है. If the stage level is X does not takes place then the. अब सबसे पहले तो हमें पहचाना है कौन सा स्टेज कौन सा है. ये G1 फेस है, ये S फेस है और ये G2 फेस है. कहने क्या X यानी S फेस ना हो तो क्या होगा? हमें पता है S फेस में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम या रेप्लिकेशन ऑफ DNA होती है, तो मीन्स DNA सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी. तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए, synthesis of DNA would stop. Next question. Which of the given diagram represent the process 2 of meiosis? सबसे पहले तो गौर करो तो यहाँ पे दो सेल्स नज़र आ रहे हैं, मीन्स ये टीलोफेस है. यहाँ पे भी दो फेजेस नज़र आ रहे हैं, ये भी हमारे पास टीलोफेस है. ठीक है. फिर हमारे पास दो ऑप्शंस बच रहे थे, ये दोनों प्रोफेस है बट सवाल में है प्रोफेस 2. प्रोफेस 1 में ना हमें साइनेप्सिस नज़र आ रहा होता है और हमें क्रॉसिंग ओवर भी नज़र आ रही होती है. साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. और प्रोफेस 2 के अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा होता. प्रोफेस 1 में हमें साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर दिखे, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, जिसमें हमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर, कोई साइनेप्सिस नज़र नहीं आ रही, कोई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नज़र नहीं आ रही है. तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए है. Next question. When a human cell undergo the process of meiosis, in the end each cell contain 23. हमें पता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंटेन करता है when one with one chromatid each, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड ईच. ठीक है. लास्ट की बात हो रही है तो क्या होगा इन द एंड. Which of the following represents the characteristic of necrosis? नेक्रोसिस की कैरेक्टरिस्टिक पहचाननी है. सेल श्रिंकेज नहीं होता है,
क्रोमेटिन कंडेंसेशन भी नहीं होता है, लाइसोसोमल लिंकेज होता है। सारे करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन ए में थे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। दैट इज नो सेल श्रिंकेज, नो क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ओनली lysosomal leakage. Means A is the correct answer. Next question. Which of the following shows the activation energy of an enzyme catalyzed reaction? हमें एक ग्राफ गिवन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन नीचे की तरफ गिवन है और एनर्जी वाई एक्सिस पे। ये जो हमें लाइन शो करी विदाउट एंजाइम रिएक्शन और ये लाइन विथ एंजाइम रिएक्शन। ठीक है, तो हमसे पूछा था एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन मींस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है ए है। और एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ तक होती है? रिएक्टेंट से पीक तक। सी भी एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है बट विदाउट एंजाइम, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ए शो कर रहा है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the chemical reaction that requires extracellular enzyme is the, they are asking कौन से केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो उसका जवाब है ए, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ वेट्स में हमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। मींस ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ। When a molecule of adenosine diphosphate react with water, it gives adenosine monophosphate and inorganic phosphate. Inorganic phosphate मिलता हमें हाइड्रोजन गैस नहीं, तो ए और बी रॉन्ग हो गए थे। सी और डी में से हमें चूज करना था। जब डाइफोस्फेट 1-फोस्फेट लूज करेगा तो हमें मोनोफोस्फेट मिलेगा, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एडिनोसिन मोनोफोस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फोस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many water molecules are involved in light-dependent reaction to produce 2 oxygen molecules by the end of photosynthesis? 2 molecules of oxygen बोला है, मीन्स टोटल कितने एटम्स हो गए? 2 2 4। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? 4 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तभी हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ऑक्सीजन गैस के। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज 4। The given diagram shows some events of aeration. Which process and byproduct formation occur at X and Y respectively? ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से, मीन्स दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। पायरोइक एसिड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल में, हमें पता है ईस्ट में और बैक्टीरिया में ये प्रोसेस हो रहा होता है, तो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड था करेक्ट आंसर वाई का। तो हमारे पास दोनों करेक्ट आंसर कहाँ थे? ए में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। The given table shows estimated energy requirement in kilocalories according to age, gender and activities। एक टेबल दिया हुआ है, मेल की 2 एजेस दी हुई है और हमें उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स दी है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है एडल्ट मेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है? इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है एडल्ट मेल्स शुड टेक मोर कार्बोहाइड्रेट देन चिल्ड्रन बिकॉज उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। The given diagram shows peristalsis in esophagus. The condition of longitudinal muscle at the position P and Q should be। ये पेस्टिलाइसिस की डायग्राम है, बट मसल्स जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, अगर यहाँ देखो तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इस पोजीशन में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, और इस पोजीशन में क्या है? रिलैक्स है। तो इसलिए मीन्स क्यू पोजीशन पे कॉन्ट्रैक्ट है और पी पोजीशन पे रिलैक्स है, इसलिए जो इसका जो सही आंसर है पी पे रिलैक्स और क्यू पे कॉन्ट्रैक्ट। याद रहे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए दिखने में हमें कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है बट सर्कुलर मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पे क्या है? रिलैक्स है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। इस डायग्राम से बिल्कुल वाज़ेह होता है। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है? रिलैक्स है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट है, सर्कुलर मसल्स क्या है? रिलैक्स है। Diagram 1 represents a plant in wilted state, while diagram 2 represents the same plant in the normal state. Which of the following are required for the plant shown in the diagram 1 to regain condition shown in diagram 2? क्या कह रहे हैं? सेम प्लांट से डायग्राम 1 और डायग्राम 2 में, बट डायग्राम 1 में प्लांट क्या है? विल्टेड है, और डायग्राम 2 में प्लांट क्या है? नॉर्मल कंडीशन में। हम चाहते हैं जो डायग्राम 1 में जो प्लांट है वो बिल्कुल डायग्राम 2 जैसा हो जाए, तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाना चाहिए,
रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाना चाहिए। इसलिए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि दोनों जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑप्शन ए में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट थ्रोम्बोसाइट्स? थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स एक ही चीज के दो नाम है। थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पिगमेंट्स भी एब्सेंट होते हैं और उनका लाइफ स्पेन 7 to 8 डेज होता है। और हमारे सारे करेक्ट ऑप्शन किस में है? ए में, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, दैट इज न्यूक्लियस एब्सेंट, पिगमेंट्स एब्सेंट, 7 to 8 डेज का लाइफ स्पेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन हार्ट। द ब्लड वेसल दैट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज, हमें पता है पल्मोनरी वेन रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में। ठीक है, दैट इज एस इज द करेक्ट आंसर। बट हमें इसका पूरा मैकेनिज्म भी तो समझना चाहिए। सबसे पहले तो आप समझे पीस वेना के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में पोर करती है। एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाती है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में ले आती है। ठीक है, याद रहे आज तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्या होता है, वीना केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसको हार्ट में ले आता है और हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में जाता है। यही ब्लड वहाँ पे प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, जहाँ से पल्मोनरी वेन की मदद से वो हार्ट में आता है और हार्ट से एओर्टा की मदद से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर था वो क्या था? एफ, क्योंकि हमसे पूछा है कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है लंग्स से? पल्मोनरी वेन करती है, हार्ट में ले आती है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एफ, दैट इज डी।